discuss about the doctrine of indoor management basically. In this, we will discuss about the Turkun's rule. As you all are aware, that doctrine of indoor management is also called as the Turkun's rule. And this doctrine says that for any kind of the internal irregularity inside the company, any outsider is not responsible. जैसे आपको बताया गया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है, that is one of the like doctrine that just saves the company from the outsiders, but the doctrine of indoor management is opposite to it. It saves the outsiders against the company. So that's why doctrine of indoor management, let us understand what actually is this doctrine with the help of the Turkund rule. Actually, there is a case on the Turkund, and we are going to just discuss the facts of that case. What happened in Turkund's case? The directors of the company borrowed some money from the plaintiff. Plaintiff means the person who is aggrieved. The article of company provides for the borrowing of money on bonds, but there was a necessary condition that a resolution should be passed in general meeting. Now, in this case, shareholders claims that as there was no such resolution passed in general meeting, so company is not bound to pay the money. हुआ क्या, तुर्कुन नाम का एक आदमी था और जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनको कुछ पैसा उधार चाहिए था. उन्होंने बॉन्ड्स को गिरवी रखकर तुर्कुन से कुछ पैसे उधार ले लिए. लेकिन कंपनी के अंदर एक ये रूल बना हुआ था कि जब भी कि कंपनी के बॉन्ड्स को गिरवी रखा जाएगा, प्लेज पर रखा जाएगा, तो सबसे पहले उसके लिए एक जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा. डायरेक्टर्स ने कोई जनरल मीटिंग कॉल नहीं की, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया और तुर्कुन से बॉन्ड्स गिरवी रखे तुर्कुन के पास और लोन ले लिया. नाउ अब जब समय आया तो तुर्कुन ने अपने पैसे वापस मांगे, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं दे आर डिनाइंग. वो कह रहे हैं कि हमें इस बात का कुछ पता ही नहीं था कि कंपनी के बॉन्ड्स को गिरवी रखा गया है. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल. उन्होंने कहा कि पहले से ये रूल है कि एक सबसे पहले मीटिंग कॉल होनी थी और उसमें रेजोल्यूशन पास होना था. तो अब आप ये बताइए कि क्या इसमें तुर्कुन का पैसा उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. सो इन दिस केस द कोर्ट डिसाइडेड दैट it was not the fault of Turkund at all. Okay, Turkund has given the loan on the basis of the bonds. He was not aware of any kind of the internal irregularity and the default of the directors inside the company. क्योंकि तुर्कुंद को कोई परमिशन नहीं है कि वो कंपनी के इनसाइड देख सके क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है. तुर्कुंद ने केवल ये सोचा होगा कि ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो इन्होंने पूरी कर ही ली होंगी और उसी बेस पर उसने कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कर दिया. So the decision was in the favor of Turkund, and it was said that for any kind of the internal irregularity, any outsider like Turkund will not be responsible for it and the company would be liable to pay the amount. So this case cleared that in case if there is any default by the insiders of the company, like directors of the company or any person who is involved in the internal management of the company, so for that default of that person, no outsider would be responsible. So this is called as the doctrine of indoor management. It saves the outsiders against the company and it is against the company. So this was the case that was asked in exam also. They changed the name of Turkun to Tafik. So always remember this case. Now there was one more case that was asked in the exam. Let us just understand this case also. This case is under the articles, the directors of a company had power to borrow money up to rupees 10,000 without the consent of the general meeting. The director themselves lent rupees 35,000 to the company without such consent and took debentures. Is the company liable for 35,000 और 10,000? कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है उसमें रूल ये बना हुआ था कि अगर डायरेक्टर्स को 10,000 रुपये तक उधार चाहिए तो वो बिना किसी से पूछे ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे बड़ी रकम उनको उधार पर चाहिए या कुछ कंपनी के काम को करने के लिए चाहिए तो उनको सबसे पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी. डायरेक्टर्स ने क्या किया, 35,000 रुपये कंपनी के अकाउंट से उठा लिए और कोई भी जनरल मीटिंग इसके लिए कॉल नहीं करी. तो बताइए कंपनी 35,000 रुपये के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर 10,000 के लिए. तो इस केस में ये बताया गया है क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं दे लुक आफ्टर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ये जो लोग इंटरनल मैनेजमेंट देख रहे हैं कंपनी का, दे कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं उनको खुद से पता है कि इंटरनली क्या चल रहा है, क्या इंटरनल इरेगुलरिटीज हैं, क्या मिसमैनेजमेंट है. पता होने के बावजूद भी उन्होंने जनरल मीटिंग कॉल नहीं की और 35,000 रुपये कंपनी के अकाउंट से उठा लिए. सो इट इज द डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड बिकॉज they are looking after the internal affairs of the company, so that's why they cannot take the advantage of the doctrine of indoor management also.
and then in this case the company would only be responsible to pay rupees 10,000 and it would be called as the complete director's fault. So this can be the answer to this question that was again asked in one of the exam. So here these two cases are clear to you and it is all based on the doctrine of the Indore management. Coming to the next, that is doctrine of ultra wires. अल्ट्रा वायर्स एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द स्कोप. आप सभी को पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी अपनी कोई कंसाइंस नहीं है. ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी का गलत फायदा उठा ले, ताकि कंपनी के शेयर होल्डर्स को बचाया जा सके या कंपनी के साथ कोई भी गलत काम ना हो, उसके क्रेडिटर्स को बचाया जा सके. इसके लिए डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि that whatever the transactions the company is doing, it should not go beyond the memorandum of association. It should not go beyond the objects of the company. So somehow this is a doctrine that is saving the company. It is protecting the interest of the company, its shareholders and its creditors. अगर कोई कंपनी के स्कोप से बाहर जाकर कोई काम किया जाता है, अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द स्कोप. अगर कंपनी के स्कोप से बाहर जाकर कुछ काम किया जाता है जिसको कि मेमोरेंडम में नहीं क्लियर किया गया है, तो वो सारे एक्ट्स वाइड होते हैं, बेकार होते हैं. दे आर नल एंड वाइड. नोबडी कैन डू एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स दी MOA, that is the memorandum of association. The next important concept is named as prospectus. Prospectus जो होती हैं, it is a kind of a document that is covered by section 2 subsection 36 of the Companies Act 1956. It states that जब भी किसी पब्लिक कंपनी को कोई इन्विटेशन निकालना होता है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करना होता है शेयर्स खरीदने के लिए, शेयर्स परचेज करने के लिए, इन दैट केस दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस टू द ROC. What actually is called as a prospectus? It means any kind of document which includes notice, circular, advertisement या और भी कोई important documents जो उस इशू से रिलेटेड हो, उस पब्लिक इशू से रिलेटेड हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी जाती है. प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स हो सकते हैं जैसे कंपनी के बारे में उसकी जनरल इंफॉर्मेशन, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट इशू के टर्म्स क्या हैं, पर्टिकुलर्स क्या हैं, कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, कंपनी प्रोजेक्ट क्या करती है, कंपनी के सारे पर्टिकुलर्स, कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशंस, कोई केस तो नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट का रिस्क फैक्टर के बारे में क्या कहना है. तो ये सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में दी जाती हैं और इस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है. इस डॉक्यूमेंट का, इस प्रोस्पेक्टस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ताकि पब्लिक को बताया जा सके कि एक नई कंपनी आई है, या फिर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके कि इस कंपनी ने इस ईयर में ये वाला IPO निकाला था और उस IPO के इनिशियल पब्लिक ऑफर के ये सारे डिटेल्स थे. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस. देयर इज वन मोर थिंग विच इज रिलेटेड विद द प्रोस्पेक्टस. कहते हैं प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रिलाय करके जनता किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है. तो ये पूरी जिम्मेदारी बनती है डायरेक्टर्स की कि वो इन्वेस्टर्स को जो भी इंफॉर्मेशन दें, वो बिल्कुल जो जनरल पब्लिक को जो इंफॉर्मेशन दें इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए. उसके अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं होना चाहिए जिसको छुपाया गया हो या भूला गया हो, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन रूल फॉर फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस. देर इज नो एनी स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ द like misstatements into the prospectus. अगर ये देखा जाता है कि प्रोस्पेक्टस किसी भी तरीके से मिसलीडिंग है या प्रोस्पेक्टस में जानबूझकर या हो सकता है कि गलती से कोई इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, तो इसको एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है. एंड फॉर दीज काइंड ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट इन द प्रोस्पेक्टस, there can be the civil liability and there can be the criminal liability. Civil liability is a kind of liability in which the person who is responsible for making that prospectus, means prospectus बनाने के लिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोमोटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. जिस भी आदमी ने गलत प्रोस्पेक्टस बनाई हो या उसमें कोई गलत स्टेटमेंट डाल दिया हो, उसकी पहली लाइबिलिटी बनती है, सिविल लाइबिलिटी बनती है कि उसको अगर कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाएगा तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर जिस आदमी ने उस गलत स्टेटमेंट पर रिलाय करके उस कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी के साथ कोई शेयर्स खरीद लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, उसको त्याग सकता है, रिस्किंड कर सकता है. डैमेजेस फॉर डिसीट एज फ्रॉड. जिन इन्वेस्टर्स ने उस मिस स्टेटमेंट पर विश्वास करके कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अगर वो चाहें तो कंपनी के डायरेक्टर्स को डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, फ्रॉड बेसिस पर भी उनसे डैमेज क्लेम कर सकते हैं.
कई बार ऐसा भी हो सकता है जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या जिन लोगों ने उस प्रोस्पेक्टस को बनाया था मिस स्टेटमेंट के लिए या नॉन कंप्लायंस के लिए प्रॉपर प्रोविजंस के, उनको दोषी ठहराया जा सकता है, या फिर उनके ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा के जनरल लॉ में उनके ऊपर तब भी उनसे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। अगर प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 57 एंड 58। अगर ये तय हो जाए कि जो प्रोस्पेक्टस इशू की गई है उसमें सेक्शन 57 और 58 का निरादर किया गया, उनको नहीं माना गया, इन दैट केस अगेन द पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल, द पर्सन हु इशूड दैट प्रोस्पेक्टस वुड बी रिस्पॉन्सिबल, उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको 5,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। पेनल्टी फॉर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस विदाउट रजिस्ट्रेशन, जब भी कोई प्रोस्पेक्टस इशू की जाती है सबसे पहले उसकी कॉपी आरओसी के पास भेजी जाती है। अगर ऐसा करने में चूक हो गई है, किसी ने कोई गलती कर दी है, डायरेक्टर ऐसा करना भूल गए हैं, तो भी उनके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस अगर उसमें कोई मिस स्टेटमेंट पाया जाता है या उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पाई जाती है जो कि मिसगाइड करती है, उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। पहली लाइबिलिटी तो ये है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू स्टेटमेंट देखा जाता है या देखा जाता है कि ये जनता को बरगलाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि इंटेंशन अच्छी नहीं थी जिसने भी किसी ने इस प्रोस्पेक्टस को बनाया, तो उनके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। जिन्होंने भी गलत किया है उनके लिए लाइबिलिटी बनती है 2 साल की जेल और 5,000 रुपए का फाइन या फिर बोथ। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखाई पड़ता है जिससे ऐसा लगता है कि जानबूझ के इन्वेस्टर्स को झूठ भगाया जा रहा है, फ्रॉडेंटली उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आओ आके पैसा इन्वेस्ट करो, तो ये एक अपराध है और इसके लिए 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। अब कहते हैं कि अगर बाई चांस ऐसा हो कि पेनल्टी ऑलरेडी लग चुकी है, सिविल लाइबिलिटी या क्रिमिनल लाइबिलिटी डिसाइड हो चुकी है, तो क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिसमें कि जो बंदे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए, वो कोई डिफेंस ले सकें, अपने बचाव में कुछ कह सकें? यस। नंबर 1, अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर दे, ये कह दे कि सर प्रोस्पेक्टस के इशू होने से पहले ही मैंने अपनी कंसेंट इससे विड्रॉ कर ली थी, हटा ली थी, इन दैट केस ही विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ द पेनल्टीज। देन सेकंड, द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज, डायरेक्टर कह दे सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी कि ये लोग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, मेरे को बिना बताए प्रोस्पेक्टस को इशू किया गया, उस केस में भी वो बच जाएगा। थर्ड इज आफ्टर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड बिफोर अलॉटमेंट देयर ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी अनट्रू स्टेटमेंट, अगर डायरेक्टर्स कंपनी के ये प्रूव कर देते हैं कि सर इस प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट था और जैसे ही हमें पता लगा हमने इस प्रोस्पेक्टस को मार्केट से वापस ले लिया था और पब्लिक नोटिस भी दे दिया था विड्रॉल का, तो हमारी गलती नहीं है, देन दे कैन बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द लाइबिलिटी, क्रिमिनल और सिविल। अगर डायरेक्टर्स कहते हैं कि सर एक पूरा रीजनेबल ग्राउंड था, हमें पूरा विश्वास था कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एकदम सही है और वो इसका प्रूफ भी दे दें कि सर ये स्टेटमेंट हमें इसलिए सही लग रहा था, इन दैट केस हो सकता है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के बच जाएं। देन द लास्ट एंड द फिफ्थ स्टेटमेंट इज, अगर स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और सर डायरेक्टर कहे कि सर स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, मैंने एक्सपर्ट्स के साथ भी बैठकर कंसल्टेशन किया था जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने भी अपनी कंसेंट दी थी और उन्होंने भी कहा था कि दैट ये इसमें कोई गलती नहीं है, तो इन दैट केस मे बी दैट डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल। So these are the various defenses available to the directors against the civil liability. There can be various kinds of the prospectus. It can be red, pink, abridged and shelf. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होती है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रोस्पेक्टस जैसी, लेकिन इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कौन सी सिक्योरिटीज आने वाली हैं और किस प्राइस से आने वाली हैं, इसको प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है। इसी तरीके से पिंक हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये वो प्रोस्पेक्टस होती हैं जो बिल्कुल रेड हेरिंग जैसी ही दिखती हैं, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, बस इसके अंदर आपको नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी होंगी उसका डिस्क्लोजर नहीं किया जाता है, इवन प्राइस रेंज भी इसमें बता दिया जाता है, इसको भी प्रिलिम प्रोस्पेक्टस का ही नाम दिया गया है। एवरेज प्रोस्पेक्टस, कई बार प्रोस्पेक्टस का शॉर्टर वर्जन कॉम्पैक्ट और कंसाइज फॉर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कई बार कंपनीज जो भी आईपीओज निकालती हैं उनको एक साथ ना निकाल के काफी सारे आईपीओज निकालती हैं, तो जो प्रोस्पेक्टस सेट ऑफ अनइशूड और रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज, बहुत सारे अनइशूड रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को अलग अलग क्लासेस में जो प्रोस्पेक्टस शो करती हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। थैंक यू।